So today's topic is on anxiety disorders. I need the cooperation from all you students. I want to make this session very interactive. So interrupt me during the lecture, ask your questions, and I will also ask the questions, and I will try to clear your all queries. So anxiety disorder is basically a very broad topic. I try to complete it in a very short way, very brief way, just to make you familiarize with the different types of the anxiety disorders. Objectives of today's lecture. At the end of the session, you all will be able to know what is anxiety, classification of the anxiety disorders, clinical features of different anxiety disorders, and the treatment outline of the anxiety disorders. So, before going into the classification of anxiety disorders, a simple question from your whole class: what is anxiety? Or what do you mean by the anxiety? Kindly write your answer in the chat box. The definition of anxiety. Yes? Anyone in the chat box? Or if anyone wants to give the answer on audio, and I can unmute that student. No one. So from 57 participants, no one knows what is anxiety. Okay. It is an state of the apprehension, the state of the tension, or the excessive concern over the danger that is either minor in degree or largely unrecognized. तो एक खाम खा की परेशानी, खाम खा का ज़हनी दबाव या एक ऐसे खतरे के लिए इतना ज़्यादा सोचना, हकीकत में भले वो खतरा ना के बराबर है, अगर है तो बहुत माइनर लेवल का है, तो उसे हम कहते हैं एंजाइटी. It is a state of apprehension or worry, tension, and an excessive concern over the danger that is either minor in degree or remains largely unrecognized. The classification of the anxiety disorder. It is generalized anxiety disorder, panic disorders, phobic disorder, acute stress disorder, post-traumatic stress disorder, and the obsessive compulsive disorder. Now, starting with the first, the generalized anxiety disorder, also known as GAD. In generalized anxiety disorder, etiology shows it is genetically inherited, so the genetic factors are involved. But in clinical features, the clinical features of GAD are divided into physical features and psychological features. The physical features will involve most of the systems of our body. Like if we think for the first, it causes the fatigue, causes the dizziness, sleep disturbance, headache, irritation to the noise or the light, palpitations, chest pain, suffocation, even choking.
dry mouth with epigastric discomfort, difficulty in swallowing, diarrhea, loss of libido, erectile dysfunction, and frequent urination. GAD is a very common problem, and most of the patients are reporting in the physician's OPD with GAD. Especially in gastroenterology, बहुत सारी खवातीन ऐसी आती हैं जिनको पेट में दर्द होता है, या उनको कहते हैं कि मैदे की तेजाबियत होती है, मैदा हर वक्त भरा हुआ महसूस होता है, उनको भूख नहीं लगती, ठीक है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, या अक्सर आते हैं थकान बहुत शदीद है, चक्कर आ रहे हैं, नींद सही नहीं है, सर में दर्द होता है। कुछ तो इस हद तक पहुंच जाती हैं कि उनको कार्डियक चेस्ट पेन महसूस होता है, और कुछ लोगों को तो सांस घुटना होता है। सांस घुटने से भी ज्यादा कहते हैं बिल्कुल गला हमारा घुट रहा है, दम घुट रहा है, इस हद तक पहुंच जाते हैं लोग। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के बार बार ये लोग जो है वॉशरूम की तरफ जाते हैं यूरिनेशन के लिए, तो ये भी मिसडायग्नोज्ड हो जाते हैं फॉर डायबिटीज और अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन में फंस जाते हैं। तो ये सारे वो फिजिकल फीचर्स हैं जो यूजुअली ओपीडीज में फिजिशियन के पास रिपोर्ट करते रहते हैं, और फिजिशियन अगर इन चीज़ों को नहीं समझते तो इनके लिए ऑर्गेनिक डिजीज की इन्वेस्टिगेशन करवाते रहते हैं। अब आते हैं इसके साइकोलॉजिकल फीचर्स पे। इसके साथ पेशेंट एप्रीहेंशन एंड फियर, वरी, परेशानी होगी और डर होगा, इरिटेबिलिटी होगी, चिड़चिड़ापन होगा, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, किसी भी चीज को ऊपर वो जहन नहीं लगा सकते, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन, उनको बहुत इजी होगा अपने रूट से डिस्ट्रैक्ट करना, अपनी पर्सनैलिटी की परवाह नहीं करेंगे, हकीकत को नहीं समझेंगे। तो जब ये सारे फिजिकल फीचर और उसके साथ साइकोलॉजिकल फीचर्स मिक्स हैं तो इसको हम लेबल करते हैं ये पेशेंट जीएडी से रिलेटेड है। ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक साइकोथेरेपी है, दूसरी फार्माकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में इनको हम एडवाइज करते हैं यूजुअली रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और फार्माकोथेरेपी में बेंजोडाइजिपीन्स लाइक डायजिपैम, एल्प्राजोलाम, और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में यूजुअली SSRI, these are selective serotonin reuptake inhibitors, और fluoxetine if young age, और escitalopram for old age। बीटा ब्लॉकर्स भी ऐड करते हैं इसमें, यूजुअली नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रेनोलोल का रोल है, क्योंकि प्रोप्रेनोलोल ये जो सारे सिम्टम्स इनके पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, चेस्ट पेन, रेस्टलेसनेस, एप्रीहेंशन, इन सब को वो जो है कवर करती है, क्योंकि ये जो भी सिम्टम्स हैं ये सारे सिंपैथेटिकली स्टिम्युलेटेड सिम्टम्स हैं उसके। नेक्स्ट है पैनिक डिसऑर्डर। बहुत कॉमनली ये वर्ड भी इस्तेमाल होता है हमारे पास कि लोग बहुत जल्दी पैनिक होते हैं। कुछ लोगों की नेचर होती है कि वो छोटी छोटी सिचुएशन में पैनिक कर जाते हैं, लेकिन ये पैनिक डिसऑर्डर पर्टिकुलरली एक एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट है। तो आज देखते हैं कि ये क्या है पैनिक डिसऑर्डर। इसकी थियोलॉजी भी ये कहती है कि जेनेटिकली इनहेरिटेड है। क्लिनिकल फीचर्स में the sudden short attacks of overwhelming anxiety accompanied by the severe physical symptoms, usually related to both hyperventilation and the sympathetic nerve system activity। तो ये
अटैक्स हैं। ये जीएडी क्या होता है? जीएडी हर वक्त पेशेंट के अंदर वो सिम्टम्स जो फीचर्स चल रहे हैं। पैनिक डिसऑर्डर्स जो हैं इसमें एक शॉर्ट और ब्रीफ एपिसोडिक एंजाइटी होती है, जो कॉम्बिनेशन होगी फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ एंजाइटी। अब फिजिकल सिम्टम्स कौन से होंगे? हाइपर वेंटिलेशन से रिलेटेड होंगे और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम से। हाइपर वेंटिलेशन जब भी मरीज करता है तो क्या होता है? देयर इज इंक्रीज इन PaCO2। अगर आप बार बार सांस लेंगे, वॉलंटियरली लंबे लंबे सांस लेंगे, तो क्या होगा? PaCO2 रिटेन होना शुरू हो जाएगी और आपकी आर्टीरियल पीएच जो है वो कम हो जाएगी या एसिडिक की तरह बढ़ना शुरू हो जाएगी ना। और इसके लिए पेशेंट कभी कभी हाइपोकैल्सीमिया में भी चले जाते हैं, यानी इतनी हाइपर वेंटिलेशन करते हैं कि मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देते हैं। बाकी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम से रिलेटेड वो सारी चीजें जैसे पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, डायरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, चेस्ट पेन, सफोकेशन, ये सारे सिम्टम्स इनको होंगे। यानी कि अगर जीएडी के फीचर्स किसी को एपिसोडिक हों तो उसे हम पैनिक डिसऑर्डर कह सकते हैं, और स्पेशली वो फीचर्स हों जिसमें हाइपर वेंटिलेशन हो और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के रिलेटेड या सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को छेड़ा जाए, तो वो चीजें पैनिक डिसऑर्डर्स में आती हैं। ट्रीटमेंट क्या है पैनिक डिसऑर्डर्स की? अगेन रीएश्योरेंस। यहाँ भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, साइकोथेरेपी और फार्माकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हम देते हैं स्लो कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, अगेन अ पार्ट ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और ब्रीदिंग इन अ क्लोज्ड पेपर बैग। ये हम क्यों दे रहे हैं? अक्सर आपने अगर इमरजेंसी विजिट करेंगे तो वहां पे मरीजों को जो है रीब्रीदेबल मास्क लगाते हैं, जिसके नीचे एक बैग होता है प्लास्टिक का और मुंह के ऊपर एक मास्क होता है। उसकी वजह यही है कि जो PaCO2 उन्होंने रिटेन किया हुआ है, किस वजह से रिटेन किया? हाइपर वेंटिलेशन की वजह से। हमें वो PaCO2 उनकी बॉडी से निकालना है, तो इसीलिए उनको एडवाइस करते हैं ब्रीदिंग करें, लेकिन इन अ क्लोज्ड पेपर बैग। अच्छा, अब आते हैं कि फार्माकोथेरेपी में हमारे पास क्या ऑप्शन है? सेम वही ऑप्शन है जिससे हम GAD को ट्रीट कर रहे थे, benzodiazepines with a diazepam and alprazolam, antidepressant drugs, इसमें स्पेशली SSRI selective serotonin reuptake inhibitors, again fluoxetine and escitalopram, और बीटा ब्लॉकर प्रोप्रेनोलोल। अगर आसान लफ्जों में समझा जाए तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर या GAD जो है वो थ्रू आउट द डे एंड नाइट उसके फीचर्स पेशेंट में चलते रहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर उसी GAD का पार्ट है, क्योंकि ये जो है इसके फीचर्स एपिसोडिक हैं। क्लियर? लेट्स मूव टू द थर्ड, फोबिक डिसऑर्डर। फोबिया भी एक बहुत कॉमन वर्ड है हमारी कम्युनिटी में या हमारी लैंग्वेजेस में। हालांकि फोबिया एक मेडिकल टर्म है, फियर इसका जो है वो लेमैन लैंग्वेज में हम रखें तो वो है। तो कॉमन फोबियाज कौन से हैं? अगर इस पिक्चर को आप गौर से देखें यहाँ पे, तो यहाँ आप देख रहे हैं एरोफोबिया। एरोफोबिया से ये मुराद है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब एरोप्लेन में बैठते हैं तो उनको एरोप्लेन के अंदर बैठने से डर लगता है और सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। कौन से सिम्टम शुरू होंगे? पैल्पिटेशन, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, ठीक है। यानी कि सारे वो जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम से रिलेटेड हैं फीचर्स वो शुरू हो जाते हैं। तो एरोफोबिया मीन्स द फोबिया ऑफ एयर या फोबिया ऑफ सिटिंग इन द एरोप्लेन।
यहाँ देखें एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया में जब भी वो हाइट पे आ जाते हैं तो उनको उस हाइट से डर लगता है। ट्रिप्नोफोबिया में काफी लोग आपने देखे होंगे ऐसे जिनको इंजेक्शन से डर लगता है, इंक्लूडिंग मी। तो जो इंजेक्शन से डर लगता है जिनको, उनको हम कहते हैं ट्रिप्नोफोबिया में है वो। यहाँ ये देखें डॉग से डर रहे होते हैं कुछ लोग, जानवरों से, डॉग से, कैट से, उनसे वो दूर भाग रहे होते हैं। इसको कहते हैं साइनोफोबिया। ठीक है, एंड इफ वी मूव हियर अगेन पेन, ये साइनोफोबिया हुआ। नाउ एरेक्नोफोबिया अगेन है। एरेक्नोफोबिया में ये है कि जैसे ये फीमेल्स में कॉमन है ना, फीमेल एंड्स, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, लिजर्ड, इनसे वो डर रही होती हैं, तो उससे हम कहते हैं एरेक्नोफोबिया। और फोबिया होने के बाद ये देख रहे हैं इसको क्या हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है इसको। एक और फोबिया होता है जिससे हम कहते हैं एगारोफोबिया। एगारोफोबिया से मुराद है फियर ऑफ बीइंग सोशल, लोगों के साथ मिलना जुलना, गैदरिंग में जाना, क्राउड में जाना, उससे डर लगता है। तो चलिए ये देखते हैं फोबिक डिसऑर्डर्स क्या हैं। इटियोलॉजी इनकी भी है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स में या जेनेटिक इनहेरिटेंस है, और अगर इनके हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखें तो हम कहते हैं ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग एक वर्ड है, इससे क्या मुराद है? ठीक है, इससे क्या मुराद है कि इट इज अ रेस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होगा, फियर या उससे अवॉइडेंस हो जाएगी उसकी। बिकम्स कंडीशन टू अ प्रीवियसली बिनाइन स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस हो, सच एज अगर कहते हैं लिफ्ट, तो स्टिमुलस है, ऑफन आफ्टर इनिशिएटिंग द इमोशनल शॉक। यूं समझेंगे एक रिस्पॉन्स आता है किसी का, रिस्पॉन्स फियर की सूरत में आता है, अवॉइडेंस की सूरत में आता है। वहां पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप किसी सिचुएशन से कोप कर रहे हैं, कोई स्टिमुलस आया है। स्टिमुलस क्या था, अगर लिफ्ट, और स्टिमुलस में जो पुराना जो इवेंट है, जो इमोशनल शॉक है, वो ये था स्टक इन द लिफ्ट। अगर कोई बंदा किसी वक्त में लिफ्ट में फंस गया था, उसके अंदर फंसने के बाद उनको अगर घुटन महसूस हुई, तो उस वक्त क्या हुआ, घुटन महसूस हो रही थी, वो लिफ्ट में फंसे हुए थे, जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो उनके जहन पे बैठ गया। और जब दोबारा वो लिफ्ट देखते हैं या उन्हें आप कहते हैं कि आपको इस लिफ्ट में जाना है, तो वो या तो उससे डरते हैं लिफ्ट में बैठने से, या तो लिफ्ट में बैठना अवॉइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पुरानी मेमोरी उनको परेशान कर रही है कि भाई एक दफा हम लोग लिफ्ट में बहुत बुरी तरह फंसे थे, इस बार ना वो लिफ्ट में बैठेंगे, अगर लिफ्ट में बैठेंगे तो वो डर रहे होंगे। तो ये जो सिनेरियो है, इसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर किसी के साथ ऐसा प्रीवियसली हुआ है, तो वो उस एक्सपीरियंस की वजह से उस सिचुएशन से या तो डरेगा या तो उसे अवॉइड करेगा। इसी तरीके से एक और मिसाल लेते हैं, बच्चे होते हैं। बच्चों को अगर आप घोस्ट की जब स्टोरीज सुनाते हैं, तो वो घोस्ट की स्टोरीज में इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। फिर अक्सर रात को अंधेरे में जब आप देखते हैं तो वो नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने थ्रीट्स को इमेजिन कर लिया है, उन्होंने उन घोस्ट को इस वक्त इमेजिन कर रहे हैं। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है कि उन्होंने स्टोरीज सुनी और उन थ्रीट्स को उन्होंने इमेजिन किया, तो अब वो फियर कर रहे हैं। जैसे डार्क रूम में कह दिया कि भूत होता है, डार्क रूम में भूत होता है, तो बच्चे कभी भी रात को अपने कमरे में लाइट बंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो डार्कनेस है वो एक स्टिमुलस है। प्रीवियस मेमोरी क्या थी, प्रीवियस उनको जो इमोशनल शॉक था वो ये था कि जब हम स्टोरी सुन रहे थे, उसमें डार्क रूम में ही घोस्ट आते हैं। डार्क रूम ने स्टिमुलेट कर दिया। अब जब रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स क्या आया कि बच्चे या तो डर रहे हैं या तो अवॉइड कर रहे हैं डार्क रूम में जाने से या डार्क रूम में सोने से। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग क्लियर है।
ओके, मूविंग टू क्लिनिकल फीचर्स। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के फोबियाज हैं। एगारोफोबिया क्या था? फियर ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम द होम with avoidance of traveling, walking down a road or supermarket. एगारोफोबिया में क्या होता है कि किसी को, इंसान को डर लगता है, अपने घर से दूर होने का डर। वो अपने घर को किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहता, वो ट्रैवलिंग अवॉइड कर देता है, वो रोड पे नीचे जाने से अवॉइड कर देता है, वो जो क्राउडेड प्लेसेस हैं जैसे सुपरमार्केट्स हैं वहां जाने से अवॉइड करता है। अगर गलती से वहां चला जाता है तो उसको वो सारे जो सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। तो यूजुअली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ट्रैवलिंग अवॉइड कर रहे होते हैं, या मार्केट प्लेसेस में जाने से अवॉइड करते हैं, पार्टीज से अवॉइड करते हैं, गैदरिंग से अवॉइड करते हैं, उसको यूजुअली एगोरोफोबिया कहते हैं। वो भी एक फोबिक डिसऑर्डर है। We are running short of time. I will send one more ID soon as our meeting is finished to complete the lecture. Claustrophobia, the fear of enclosed spaces. Enclosed spaces में अक्सर आप देखेंगे, जैसे लिफ्ट का मिसाल ले लें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब आप लिफ्ट में चले जाते हैं तो उनको डर लगता है, वो अवॉइड करते हैं लिफ्ट में जाने से, क्योंकि उनको जो एनक्लोज्ड स्पेस है, फ्लैट जो लिफ्ट पूरी बंद हो रही है, उससे डर लग रहा है। और कुछ लोगों में क्लास्ट्रोफोबिया इस हद तक बढ़ जाता है। मैंने एक रियल एग्जांपल देखा है, हमारी इसरा यूनिवर्सिटी में हमारे एक फैकल्टी मेंबर हैं, वो इस हद तक हो गए थे कि अगर वॉशरूम में जाते थे तो वो गेट बंद नहीं करते थे, किसी को बाहर कह देते थे कि भाई मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, इस रूम में कोई नहीं आएगा, क्योंकि उनको गेट जैसे ही बंद होता था उन्हें लगता था ये गेट बंद हो गया, मेरा दिमाग फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा यहाँ पे, या मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तो इवन वॉशरूम का गेट या वॉशरूम के एरिया को बंद करने से भी उनको डर लगता है। इवन एक रूम में अगर लाइट चली जाए और वो रूम में हो, क्लोज्ड स्पेस हो, बंद हो, तो उनको वहां सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। और इस हद तक सफोकेशन होती है कि वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं जब तक कोई रोशनी वहां नहीं पहुंचती या कोई आकर उस दरवाजे को खोलता नहीं। तो ये क्लास्ट्रोफोबिया है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, वो हमारे इर्द गिर्द होंगे, लेकिन हमारे दिमागों में इस वक्त वो नहीं होंगे। सोशल फोबिया में क्या था कि अवॉइडेंस ऑफ गैदरिंग, क्राउडेड प्लेसेस, स्ट्रेंजर्स, मीटिंग्स एंड पब्लिक स्पीकिंग। सोशल फोबिया और एगारोफोबिया थोड़े से एक दूसरे से मिमिक करते हैं। वहां क्या था, वो जाना नहीं चाह रहा था एगारोफोबिया में। सोशल फोबिया में अगर वो चला गया है तो लोगों से बात करने से वो कतराते हैं। अजनबियों से अगर उन्हें मिलना होता है, या तो वो मिलना नहीं चाहते, अवॉइड कर देते हैं। अगर मिलते हैं तो मिलने के दौरान उनकी हालत ऐसे पसीने छूट रहे होते हैं, दिल की धड़कन तेज है, उन्हें सफोकेशन हो रही है, और जितना जल्दी हो सके वो सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। क्राउडेड प्लेसेस में जैसे अगर किसी पार्टी में चले गए हैं, चले तो गए हैं, लेकिन वहां रहना वो पसंद नहीं करेंगे। वहां लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, उनका हाल अहवाल पूछना वो पसंद नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा तो उनको सारे सिंपैथेटिक सिस्टम के सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे और वो जितना जल्दी हो सकेगा वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। सिंपल फोबिया ये हम सबके साथ हैं, अक्सर फीमेल में होता है। फियर ऑफ स्पाइडर, इंसेक्ट्स, स्नैक्स, बैट्स, डॉग्स, हाइट्स, विमेटस, डेंटिस्ट। जी भाई, आपसे भी डर लगता है कि हम लोग वहाँ डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी को दांत के डॉक्टर से डर लगता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हॉस्पिटल में एंटर होते ही सिंपैथेटिक सिम्टम शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, हर एक फोबिया का अलग नाम है, लेकिन इन सबको हम एक साथ मिला लें तो हम कहते हैं ये सारे सिंपल फोबियाज हैं। ट्रीटमेंट क्या है फोबिक डिसऑर्डर की? अगेन साइकोथेरेपी और फार्माकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हम करते हैं या तो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन या फिर फ्लडिंग। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन से मुराद ये होगा कि आपको लेट सपोज लिजर्ड से डर लगता है,
तो वो क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल लिजर्ड लाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब लाएंगे, आपको उसे टच करने का कहेंगे, आपको उसके साथ वक्त गुजारने का कहेंगे, और धीरे धीरे आप जो सिस्टमिकली उस डर से बाहर आ जाएंगी, क्योंकि आपके रिसेप्टर्स अब उस डर से डिसेंसिटाइज हो गए हैं। फ्लडिंग क्या होगा? फ्लडिंग ये होगा कि आप बैठे होंगे, अचानक से 3-4 आर्टिफिशियल लेजर लेकर उस पेशेंट के ऊपर फेंक देंगे, तो एकदम से जब उसे स्टिमुलस मिलेगा, एक रिएक्शन आएगा और उसके बाद वो फौरन से उस डर से बाहर आ जाएगा। लेकिन फ्लडिंग बहुत ज्यादा डेंजरस टेक्निक है और बहुत ज्यादा केयर के साथ इस्तेमाल की जाती है साइकोथेरेपिस्ट के पास। फार्माकोथेरेपी में एक ही ऑप्शन है आपके पास, फोबिक डिसऑर्डर में आप सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे, सच एज SSRIs इंक्लूडिंग फ्लूक्सेटीन यंग एज में और ईसिटालोप्राम फॉर ओल्ड एज। तो ये दो ऑप्शंस हैं। I'm going to start a new meeting because we are running a short of time, just less than 1 minute to complete the remaining 3 disorders. I'm sending the password very soon. Acute stress disorder, again a part of the anxiety disorder. That's it. Occur in response to the acute physical or psychological stress. Yes. In the absence of the psychiatric disorder, and it usually subsides from the 48 hours to 4 weeks in duration. तो acute stress reaction या acute stress disorder एक ही बात है। यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पे कोई साइकेट्रिक इलनेस बैकग्राउंड में नहीं है। विदाउट साइकेट्रिक इलनेस ये एक फिजिकल एज वेल एज एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, जो कि तकरीबन 48 घंटे, ये 2 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में ही वो सेटल डाउन हो जाता है। तो ये एक रिएक्शन है, फिजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी। यहाँ पे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स नहीं है। और दूसरी बात कि ये जो है 2 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में सेटल डाउन हो जाता है। Stress, it may be overwhelming traumatic experience such as accidents, battle, rape or a physical assault. अब वो स्ट्रेस क्या है जिस पे रिएक्शन आ रहा है? खास तौर पे वो स्ट्रेस कब है? कोई ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से मुराद है भले फिर वो एक्सीडेंट हो, okay, we will wait till all will join. Now 58 students joined. I will repeat this, but ask all the students to mute their mic. Kindly mute your mic so we can easily continue the lecture and finish it on time. Asma Khoro, mic अपना mute कर लें please. It is acute stress disorder. It occurs in response to acute physical or a psychological stress in the absence of the psychiatric disorder, and it usually subsides from 48 hours to 4 weeks duration. ये बेसिकली इसकी एक टाइम लिमिट है। अक्यूट कह रहे हैं इसलिए क्या ये 2 दिन से लेकर 1 महीने के बीच का ड्यूरेशन है। इसके बैकग्राउंड में कोई साइकेट्रिक इलनेस नहीं है और ये एक फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को रिस्पॉन्स है। अब स्ट्रेस कौन सा हो सकता है? इसमें ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, सच एज एंजाइटी में एक्सीडेंट्स हुए हैं किसी के, या कोई बैटल में है, वॉर फील्ड में है,
रेप्स हैं और फिजिकल असॉल्ट्स हैं। तो ये सारे स्ट्रेसर्स हैं, ये फिजिकल स्ट्रेसर भी हैं और इन स्ट्रेसर्स का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। इन स्ट्रेसर्स को जो रिस्पॉन्स आता है, और अगर वो रिस्पॉन्स 48 आवर से लेकर 1 मंथ तक रहता है तो उसे हम अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में कैटेगराइज करते हैं। फीचर्स क्या होंगे? फीचर्स इंक्लूड फीलिंग ऑफ द नंबनेस with inability to comprehend the situation, which is followed by the withdrawal of the situation or the overactivity. तो अक्सर आपने ये फिल्मों में देखा होगा कि अगर किसी की डेथ देखते हैं तो हम कहते हैं वो शॉक हो जाते हैं। बेसिकली वो शॉक नहीं, उसे हम कहते हैं नम्ब हो जाना। अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखें तो वो नम्बनेस हो जाती है। नम्बनेस होने के बाद उन्हें ये पता नहीं होता कि इस सिचुएशन को कैसे कोप करना है। जो डेथ हुई है उसके प्यारे की, उस वक्त उसे करना क्या है, उसे वो समझ ही नहीं आ रहा होता। और कुछ वक्त के बाद क्या होता है, या तो वो वहां से भागकर किसी और कमरे में चले जाते हैं, अगर किसी और कमरे में नहीं चले जाते, वहां पर रहते हैं, तो वो ओवर एक्टिविटी करते हैं। ओवर एक्टिविटी से ये मुराद है कि वो बड़ा अजीब सा एक रिएक्शन देते हैं जो सिचुएशन से रिलेटेड नहीं होता। अमूमन आपने ये फिल्मी सीन्स भी देखे होंगे कि भाई किसी की डेथ हो गई, पहले वो एकदम चुप हो गए, चुप होने के कुछ देर के बाद या तो वो भाग के किसी और रूम में चले जाते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते उसको कि भाई वाकई में अपने प्यारे की डेथ हो गई है। कुछ ऐसे होते हैं जो अजीब सा रिएक्शन देते हैं, बोले नहीं ये इसकी डेथ नहीं है, उस वक्त खुशी कर रहे होते हैं, लोगों को समझा रहे होते हैं कि आप लोग गलत हैं, मैं सही हूँ, ये इसकी डेथ नहीं हुई है। तो ये सारा जो सिचुएशन आपने देखा है, जो एक फिल्मी सीन हम यहाँ बयान कर रहे हैं, तो ये बेसिकली अगर साइकेट्री में देखा जाए तो ये एक अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन है। अक्सर ऐसे होते हैं जिनके साथ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, रोड ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स, अगर मेजर एक्सीडेंट्स हैं तो नंब हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा इस वक्त हमें क्या करना है। क्या हमें गाड़ी से उतर के किसी हॉस्पिटल की तरफ जाना है? क्या हमें कोई मेडिकल एड लेनी है? नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है। और जब ये रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो आइंदा गाड़ी में बैठने से अवॉइड करते हैं, गाड़ी में ट्रेवल करने से अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ये एक अजीब सी वो सिचुएशंस होती हैं जिन्हें हम अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन कह सकते हैं। इनको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, जस्ट द नीड द रीअश्योरेंस एंड सपोर्ट। इनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एंजियोलाइटिक नहीं है, कोई एंटी डिप्रेसेंट देने की जरूरत नहीं है, किसी भी साइकोथेरेपी की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन। अब आ जाते हैं, एक और वर्ड है इसका PTSD हम कहते हैं इसको, यह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये पिक्चर यहाँ बयान कर रही है कि अगर इस लड़की ने अपनी आंखों के सामने एक खतरनाक एक्सीडेंट होते हुए देखा, देखने के बाद भले ही ये घर चली गई, जिसका एक्सीडेंट हुआ उससे इसका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन एक मेजर इवेंट, एक वायोलेंट सिचुएशन इन्होंने अपनी आंखों से देखी है। और घर जाने के बाद या रात को सोते वक्त या जब अकेली बैठी हैं तो उसी एक्सीडेंट के अगर फ्लैशबैक्स इनको आ रहे हैं तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आएगा। लेट्स सी। Number one, it arises as a protracted response just to the stressful situation, which are usually developed after 4 weeks. ये एक protracted response है जो डेवलप होता है। कब डेवलप होता है? इसको डेवलप होने में कम से कम 1 महीना लगता है। Causes include the natural or the human disaster, war, accidents, witnessing the violent death of the other, or victim of sexual abuse, victim of torture, terrorism,
और हॉस्टेज टेकिंग। अक्सर इसका मिसाल यूं ले लें कि जैसे अगर किसी को कोई किडनैप करता है, किडनैप करने के बाद उसके ऊपर जो वहाँ तशद्दुद, जो टॉर्चर वहाँ होता है, उस वक्त तो बर्दाश्त कर रहा है। लेट सपोज अल्लाह के करम से वो उस हॉस्टेज से बाहर आ गया, रिहा हो गया, बच गया, अब वो अपने घर में आ चुका है और उस हादसे को वक्त गुजर गया है, लेकिन फिर भी जब वो अकेला होता है उसके फ्लैशबैक्स आते हैं। अगर वो सो जाता है तो नींद में वो सपने आते हैं उस टॉर्चर के, उसे लगता है अभी तक वो उस टॉर्चर के अंडर है, उस टॉर्चर को महसूस करता है। तो ये जो पेशेंट है हमारा, इसको हम लेबल करेंगे पीटीएसडी। फीचर्स इंक्लूड फ्लैशबैक्स, इंसोम्निया, ठीक है, नाइटमेयर्स, इमोशनल ब्लंटिंग and intense anxiety upon re-exposure to the resembling events. So hypervigilance and autonomic hyperarousal. पहला मैंने बताया फ्लैशबैक कैसे आते हैं, रात को ख्वाब आते हैं, इनकी नींद उड़ जाती है। इमोशनल ब्लंटिंग से ये मुराद है कि ये ना खुश होते हैं ना रोते हैं, इनके इमोशन जो होते हैं वो एक ही पेस पे चल रहे होते हैं, नॉर्मल मोड पे चल रहे होते हैं, ना ये खुशी की तरफ जा रहे हैं ना गम की तरफ आ रहे हैं। इनके चेहरे के ऊपर जो रिएक्शन आने हैं वो रिएक्शन आना खत्म हो गए। एंजाइटी होगी अगर वैसा ही इवेंट ये दोबारा देख लें। लेट सपोज इन्होंने टीवी के अंदर देख लिया एक रेप सीन, तो अगर उस विक्टिम के साथ पहले कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो उस सेक्सुअल अब्यूज को देखकर उसको अपना सेक्सुअल अब्यूज याद आ रहा है। या टीवी के ऊपर एक एक्सीडेंट सीन देख लिया, देखते ही उसको अपना एक्सीडेंटल सीन याद आएगा और वो उनको इतनी इंटेंस एंजाइटी होगी, सारे सिंपैथेटिक सिम्टम्स होंगे, पैल्पिटेशन, सफोकेशन, चेस्ट पेन, चॉकिंग, स्वेटिंग, रेस्टलेसनेस, डिजीनेस, इवन वो वोमिटिंग कर देंगे। तो जब भी वो रिजेंबलिंग इवेंट से उनका वास्ता पड़ेगा जिससे वो गुजर चुके हैं तो वो इंटेंस एंजाइटी फील करेंगे। हाइपर विजिलेंस से ये मुराद है कि अगर घर में उनका कोई कजन भी आएगा, अगर पहले सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो वो उससे भी ख्याल करेंगे और उनको एक ऑटोनॉमिक हाइपर अराउजल होगा। या फिर अगर एक्सीडेंट हुआ है पहले, तब वो जब गाड़ी में बैठेंगे तो सबसे पहले बहुत ज्यादा गैर चेक करेंगे, भाई गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, इंजन सही है, ऑयल ठीक है, पानी ठीक है, क्या मेरी गाड़ी के ब्रेक्स काम कर रहे हैं, क्या गाड़ी का हैंड ब्रेक काम कर रहा है, क्या गाड़ी की स्पीड मेरे कंट्रोल में हो सकती है। तो हर एक सिचुएशन के लिए हाइपर विजिलेंस होंगे। इनके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास अगेन साइकोथेरेपी है, फार्माकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी से क्या मुराद है कि इनको हम कहते हैं आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। ये एक टिपिकल किस्म की साइकोथेरेपीज होती हैं जिसमें इनकी आई की मूवमेंट्स को वो रिवर्स किया जाता है ताकि उनको वो फ्लैशबैक्स ना आए, वो नाइटमेयर्स ना आए। और भी डिफरेंट किस्म की साइकोथेरेपीज होती हैं जिससे वो उनकी इंसोम्निया का मसला हल हो। अगर वो सिचुएशन से दोबारा मिलें या उस सिचुएशन को दोबारा फेस करें या उस सिचुएशन की जैसी कोई सिचुएशन देखें तो वो अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकें। अच्छा, दूसरा है एंटी डिप्रेसेंट्स। यहाँ भी आपको SSRI देनी है, selective serotonin reuptake inhibitors with including fluoxetine and escitalopram। दो चीजें, साइकोथेरेपी और जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स एंड फार्माकोथेरेपी। Any question there till post traumatic stress disorder? You can write your question in the chat box. Now moving to a very interesting topic, obsessive compulsive disorder. It is also a part of the anxiety disorder. Okay, one question. Let's see. No question. Okay.
तो व्हाट इज OCD? OCD में अगर यहाँ आप एक पिक्चर को गौर से देखें तो ये एक एंजाइटी में बैठी है, ठीक है। यहाँ देखें तो ये सोच रही है कि मैंने जो घर का दरवाजा बंद करा था, जो लॉक में करके आई थी, क्या वो लॉक प्रॉपर था या नहीं, मुझे शायद वापस जाकर उसे चेक करना चाहिए। इस टेबल के ऊपर अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो इस टेबल में आप देखें ऑर्गेनाइज चीजें रखी हुई ना, पहले बड़ी बुक, फिर उसके बराबर में नोट्स, कैलकुलेटर, पेन, एक और बुक और स्केल। ये बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें अपने टेबल पे रखते हैं। फुट स्टेप देखें बड़ा संभाल के, इस पिक्चर में देखें तो ये सोचते हैं कि अब लेफ्ट फुट मुझे पहले लेना है या राइट फुट, और अपनी वॉक को ये बड़ा असेंबल्ड करके चलेंगे, उसको बहुत ज्यादा ध्यान से चलाएंगे। यहाँ पे देखें ये बंदा कलर जब इन्हें करने होंगे तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से कलर करेंगे, यानी कि अगर ब्लू हम समझते हैं ये तीनों ही ब्लू हैं पेंसिल, लेकिन ये बड़ा गौर से देखेंगे ये लाइट ब्लू है, ये डार्क ब्लू है, ये सी ग्रीन कलर की तरफ जा रहा है, ये नेवी ब्लू है। तो ये बहुत ज्यादा विजिलेंस के साथ जो है इन चीजों को देखेंगे। और अगर राइटिंग होगी ना इनकी, अगर ये पेपर आप देखें राइटिंग बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होगी इनकी। यहाँ देखें हर एक वर्ड के बीच में जो स्पेस होगा बड़ा कैलकुलेटेड स्पेस होगा और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग होगी। पूरे पेपर में आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे कि अगर फुट स्केल रख के आप सेंटीमीटर नापें तो उस स्पेस के साथ वो सारी चीजें लिखी गई होंगी। इसको देखें, अगर ये वेट चेक कर रहे हैं अपना, ये जब वेट चेक करेंगे तो बड़े वेट कॉन्शियस होंगे। हाँ इस बार देखिए 70 है, दोबारा चेक कर रहा हूँ, हो सकता है जी मैंने गलत चेक करा, फिर चेक करेंगे, दोबारा चेक करेंगे, नहीं अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ, शायद ये गलत हो। यहाँ ये देखें ये क्या कर रहा है, हैंड वॉश कर रहा है। और आजकल कोरोना के टाइम पे वैसे ही हम लोग बार बार हैंड वॉश कर रहे हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो बार बार अपने हैंड वॉश करते हैं, फिर चले जाएंगे, फिर इनको लगेगा नहीं अभी हैंड सही तरीके से वॉश नहीं हुए, दोबारा आएंगे फिर वॉश करेंगे, फिर आएंगे फिर वॉश करेंगे। अगर इनका हाथ वॉश होने के बाद गलती से किसी चीज पे लग गया, दोबारा से आके वॉश करेंगे। आपने एक फिल्म देखी होगी हम शक्ल, बहुत बुरी फिल्म थी, लेकिन उसमें साइकेट्रिक वार्ड दिखाया गया है। साइकेट्रिक वार्ड में एक ऐसा पेशेंट होता है जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। उसे इतनी सीवियर किस्म का डिसऑर्डर होता है कि उसे लगता है कि अगर कोई उसके सामने छींक देता है तो उसे लगता है वो जरासीम उसके ऊपर फेंक रहा है, तो जरासीम जैसे उसे लगेंगे तो वो मर जाएगा। तो वो बड़ा एंजाइटी के साथ रिएक्ट करता है, लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। अगर कोई उसे टच करता है तो उससे भी लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है इस बंदे से जरासीम अब मुझे लगेंगे और मैं मर जाऊंगा। और वो पेशेंट हर वक्त अपने पास सैनिटाइजर रखता है और सैनिटाइजर से हर वक्त अपने हैंड वॉश करता रहता है, बराबर वालों के हैंड वॉश करवाता रहता है। वो एक टिपिकल एग्जांपल था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स का या ओसीडीज का। चलें जी, अब इसको देखते हैं जरा सा डिटेल में ये क्या चीजें हैं ये। This disorder is characterized by the obsessional ruminations and then compulsive rituals। तो इसके दो फेज हैं, एक फेज में ऑब्सेशन हो रही हैं, दूसरे में कंपल्शंस। अब ऑब्सेशंस क्या हैं? ऑब्सेशन से मुराद ये है कि ये सारे अनवांटेड आइडियाज हैं, अनवांटेड वो थॉट्स हैं, इमेजेस हैं, या वो इम्पल्सेस हैं। ठीक है, ये गैर जरूरी आइडियाज हैं, गैर जरूरी थॉट्स हैं, गैर जरूरी इमेजेस उसके जहन में आ रही हैं, उसके जहन में ये जो सोच आ रही है गैर जरूरी है, वो नहीं भी चाहता फिर भी आती है। यहाँ भी एक एग्जांपल देंगे, एक फिल्म का फैन फिल्म आई थी शाहरुख खान की। जो शाहरुख खान के फैन थे उसमें जो दिल्ली में रह रहे थे, उनको ऑब्सेशन था, उनको इतना शदीद ऑब्सेशन था, उन्हें लगता था कि भाई उसके जहन में ये था कि भाई मैं तो बिल्कुल शाहरुख खान से मिमिक करता हूँ, मैं जब उससे मिलने जाऊंगा मुझे गले लगा लेंगे,
वो अपने जहन में अजीब सी इमेजेस बना लेते हैं उन चीज़ों की, अजीब अजीब ख्यालात उनके जहन में आते हैं। तो वो एक ऑब्सेशन है, और वो ऑब्सेशन में इस हद तक जुनून पे आ जाते हैं कि अपना बदला लेना शुरू कर देते हैं। ऑब्सेशन से वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं। अब कंपल्शन क्या है? These are repetitive and seemingly purposeful actions. मतलब जो आइडिया आपके जहन में आया है, आप लाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके जहन में वो आइडिया, वो सोच, वो इमेज आई है। अब आप उस पर जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो उसको देखकर जो आप काम करेंगे, वो हो जाएगा कंपल्शन। अगर एग्जाम्पल लें, ऑब्सेशन ये है, आपके जहन में आया कि मेरे हाथ गंदे हैं, मैंने लैपटॉप को भी हाथ लगाया है, ये हाथ गंदे हैं मेरे। हेलो, ada OPD में पेशेंट ada here में बिजी है, लेक्चर बैठा दो को गलत सॉरी। तो ऑब्सेशन क्या है? हैंड्स उसके डर्टी हैं, उसके जहन में आया हाथ उसके खराब हो गए। कंपल्शन क्या होगा? वो बार बार धोने जाएगा। जहन में आइडिया ये आया कि हाथ खराब है, अगर वो उठ के उससे धोने गया तो ये कंपल्शन है, फिर से धोने गया कंपल्शन है, फिर से धोने जाएगा, ये कंपल्शन है उसका। तो ये एक पूरा साइकिल होता है ऑब्सेशंस का और कंपल्शंस का। इटियोलॉजी ओसीडी की ये कि इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स ज्यादा हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स कहती है कि भाई जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं उसमें 5 to 7% चांसेस हैं ट्रांसमिट होने के, यानी कि अगर बाप में है तो बेटे में ट्रांसमिट होने के चांसेस 5 to 7% हैं। 50% चांसेस हैं डायजाइगोटिक ट्विंस में, अराउंड 80 to 90% चांसेस हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। सेकेंड, ये पोस्ट सिनेप्टिक सीरोटोनिन रिसेप्टर हाइपर सेंसिटिविटी है, which may follow low serotonin. बेजल गैंग्लिया डिसफंक्शन जैसे पार्किंसोनिज्म है, सिडेनहाम्स कोरिया है, हंटिंगटन कोरिया है, या हेड ट्रामा हुआ है, तो इन सब के साथ ओसीडी एसोसिएटेड होता है। तो जेनेटिक्स, लो सीरोटोनिन लेवल और बेजल गैंग्लिया डिसफंक्शन, ये तीनों लीड करते हैं ओसीडी को। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में फिर से वही आता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग से क्या मुराद थी? मैंने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि अगर एक इवेंट हुआ और इवेंट जैसे उसको जो रिस्पॉन्स आएगा, लेट्स सपोज कि इवेंट क्या हुआ, एक दफा उसके हाथ वाकई में गंदे थे तो उसको कोरोना लग गया। आजकल की सिचुएशन कि उसने किसी पब्लिक प्लेसेस में वो एटीएम यूज करने गया या कहीं पब्लिक प्लेसेस में बैंक्स में गया, जब वहां से वो वापस आया, वहां के जो टेबल्स, वहां की एक्सेसरीज को टच करके फिर उसको कोरोना हुआ, तो ये अब उसके जहन में बैठ गया। अब वो नेक्स्ट टाइम जब भी बैंक्स की तरफ जा रहा है तो ग्लव्स पहन रहा है, लोगों से जो तकरीबन 6 फीट के डिफरेंस पे बैठ रहा है, कोशिश कर रहा है कि एक्सेसरीज को ऊपर से टच करें, अपनी पेन यूज कर रहा है, किसी और की पेन यूज नहीं कर रहा। अगर कोई डॉक्यूमेंट उसे पढ़ने के लिए दे रहे हैं तो वो कहता है पढ़ें, पकड़े आप अपने हाथ में, वो ऊपर ऊपर से उंगली ऐसे रख के वो पढ़ेगा। तो ये क्या हो गया? क्लासिकल कंडीशनिंग हुआ। एक इवेंट उसके साथ हुआ था, वो इवेंट उसके जहन में है, अब उसको ये रिस्पॉन्स आ रहा है। ऐसे एक पेशेंट मैंने डिस्कस किए थे, मेरी फैकल्टी में है इसरा यूनिवर्सिटी में, वो ऐसे करते थे, बुक मंगवाते थे। जब मैं हाउस जॉब कर रहा था कहीं इसरा हॉस्पिटल में, 2011 की बात है, तो वो कहते बुक लेकर आए, और जब बुक हम लेकर जाते खोलो, तुम खोलते थे, ये वाला पेज खोलो, खोल दिया, फिर वो पेन जो है अपने निकाल के ऊपर रखते थे बुक से, ऐसे पढ़ते थे। अगर कोई उन्हें टच कर लेता था वो नहाने चले जाते थे। अगर किसी कुर्सी पे वो बैठते थे उसको पहले अल्कोहल स्वाब से साफ करवाते थे, फिर उस पे बैठते थे। वो सीवियर ओसीडी में थे। अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है
और काफ़ी हद तक उनके सिम्टम्स कंट्रोल्ड हैं, तो आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि वो कौन है, लेकिन है वो मेडिसिन एंड एलाइड में। ट्रीटमेंट क्या होगी ओसीडी पेशेंट की? साइकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी और सर्जरी। साइकोथेरेपी में हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। फार्माकोथेरेपी में वही एंटी डिप्रेशन ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, और एंटी डिप्रेशन में चॉइस ऑफ ड्रग जो है वो ये है SSRIs, फ्लुक्सेटीन एंड एसिटालोप्राम। सर्जरीज जो होती हैं वो खासतौर पे सब काउडेट ट्रैक्टोटोमी और सिंगुलोटोमी। लेकिन सर्जरीज की नौबत तब आती है जब ओसीडी के सिम्टम्स इतने सीवियर हों जो फार्माकोथेरेपी और साइकोथेरेपी को रेस्पॉन्स न करें। Thank you very much. And anxiety doesn't come from thinking about the future, but from wanting to control it. बेचैनी तब नहीं होती जब हम हमारे मुस्तकबिल को सोचते हैं। बेचैनी तब होती है जब हम उस सोच को आने से रोकते हैं, हम उस सोच को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो सोच का आना अच्छी बात है, लेकिन उस सोच को कंट्रोल करने से आपको एंजाइटी होगी। Thank you very much. If you have any questions regarding all these 6 types of anxiety disorder, then either write in the chat box or you unmute your mic to ask your question. If you have no question, then we have to end the session now, because you have to go for the neurology PBL. Any questions? Yes, chat box, one students. Thank you, sir. Okay, ji, thank you. Welcome. We'll meet tomorrow by 9:30 a.m. with a new topic of psychiatry, that is bipolar disorder. Hope you're enjoying the lecture. If you have any query, you can directly WhatsApp me regarding the quality of the lecture, regarding the delivery of the lecture, regarding my voice. I welcome your comments. I type my number for you to provide me the comments that facilitate me to improve my quality of lecture. Although I am a physician, but I am trying to facilitate you during the absence of Dr. Manzoor Jamali, our consultant psychiatrist. So I welcome your comments regarding the lecture, its quality, its video, its voice, or the way of delivery. Thank you, and Allah Hafiz. Take care.